Okay, today we will discuss about the Fisher projection. ओके, जैसे हमें लैक्टिक एसिड रिप्रेजेंट करना है, हमको टार्टेरिक एसिड रिप्रेजेंट करना है, तो कौन सा ग्रुप सबसे ऊपर आएगा? ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले आपके फिशर प्रोजेक्शंस को जो है स्टडी करना रहता है. ठीक है, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप present at top of the position, top of the position according to Fisher projection, according to Fisher projection. ठीक है, जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होगा वो फीसर प्रोजेक्शन के द्वारा सबसे ऊपर आएगा. ठीक है, दैट इज इट गेट दैट इज 1 नंबर. ठीक है, ये आपका पहला नंबर गॉट करेगा. ठीक है, ड्यूरिंग द फीसर प्रोजेक्शंस द कंपाउंड्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, दैट इज दिस फॉर्म, दिस asymmetric with taking the asymmetric carbon. This is the asymmetric carbon in which vertical as well as the horizontal form it is represented. Vertical line, that's are represent ups and downs with respect to the paper, but that a horizontal represent with paper, plain paper. Okay, most oxidized group present this is the top position, this is the top position according to the Fisher projection. Okay, sometimes it is represented by the this the intersection points that are called the asymmetric nature. This is the intersection point that's also called the asymmetric carbon. Okay, the vertical line, according to the observation, vertical lines far away from the observer, while the horizontal line that is always to move towards the observer. Okay, so this is the assumption of Fisher projection, and that means all the compounds generally follow the Fisher projections. Sometimes representations, during the representation of compounds you obtain that the thick line and dash line. ठीक है, the dash line always move towards the forward, that is the thick lines toward the observer, while the disappear the dash line. Okay, so this is the Fisher projection. Okay, next to be discussed about the optical isomerism of lactic acid. Okay, optical isomerism of लैक्टिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दो ही हमारे कोर्स में है, एक लैक्टिक एसिड एक टार्टेरिक एसिड. ओके, लैक्टिक एसिड जो है आपका कितने तरीके का जो है आपका शो करता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, तो हम बेसिकली आते हैं कि लैक्टिक एसिड जो है वो 3 तरीके का ही आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है. फर्स्टली दैट्स आर रिप्रेजेंट द कंपाउंड COHCH3. आप इसको और भी चेंज करके भी लिख सकते हैं, बशर्ते जो है मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप आपका ऐसा भी होना चाहिए, या अगर आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो कोई भी दिक्कत आपका नहीं होगा. कुल मिलाकर के आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना है. ठीक है, सो दिस इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म and taken as the mirror image, then obtained the conversion, it is a just reverse, so that's are obtained HCOH and COH and CS3. Okay, this is obtained. This is the mirror image of the A, so this is represent as plus sign and this is the D form, and this is a mirror image, so this is the minus and L form. Due to plus sign, that is you know very well, that is dextrorotatory notation. That means this compound always rotate the plane of polarized light in clockwise direction, while this is always rotate the plane of polarized light, that is anti-clockwise rotation. So this is the D form, this is the L form. While
when this compounds taken both are the composition form, इन दोनों का जोड़ इक्वामोलर अमाउंट ऑफ plus D form and minus L form, that is called racemic mixture. This is called the racemic mixture. these two compounds that rotate the plane of polarized light. So this is the optical active. इसको हम क्या कहेंगे? जो कंपाउंड हमारे प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं उनको हम ऑप्टिकल एक्टिव कहते हैं। और जो आपका जो रेसिमाइजेशन जो शो करता है, जो रेसमिक मिक्सचर है, जो प्लस और माइनस दोनों को कंपनसेट करके लॉस हो जाता है, सो दैट्स आर द इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल इनएक्टिव कंडीशन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल इनएक्टिव। आपसे सीधे पूछता है ऑप्टिकल एक्टिव में कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लैक्टिक एसिड में कितने ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं और कितने आपके ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, तो सीधे आप नहीं बना पाते हैं। तो भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन में सीधे आप बताएंगे कि आपके दो फॉर्म प्लस डी और माइनस एल फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं और रेसमिक जो मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। दैट इज द ओनली दैट सिचुएशंस आर ऑब्टेन्ड हियर, या इसी को आप इंडिकेट करेंगे। ओके, सो दिस इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड। अब हम लोग स्टडी करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ टार्टेरिक एसिड। ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ टार्टेरिक एसिड। ओके, टार्टेरिक एसिड के बारे में बात करते हैं। आप लोग जानते हैं, फार्मूला भी आपको पता ही है। ठीक है, टार्टेरिक एसिड में हमको दो एसिमेट्रिक कार्बन मिलते हैं। जहां पर दो एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं तो आप समझ जाइए कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा वो हमेशा डबल उसका हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा फार्मूला है टार्टेरिक एसिड के लिए। 2n स्क्वायर का फार्मूला फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 2n की बात करें तो हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं? 2 हो जाएंगे। यानी यहाँ पर हमारा आपका हो जाएगा n की वैल्यू आपका 2 हो गया। जो एसिमेट्रिक कार्बन की बात करता है, एसिमेट्रिक कार्बन, सो दैट इज द, अगर 2 की पावर 2 हो गया तो दैट इज 4। इसका मतलब टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमको कितना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होगा वो टार्टेरिक एसिड में 4 होगा। अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं कैसे 4 होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टार्टेरिक एसिड का फार्मूला। ये आपका है CHOH and CHOH and COOH. Okay, this is the mirror image. This is taken as the mirror image. So COH and C just reverse of the compound group. जो ग्रुप होगा, some of the group are anti and some of the packed, some of the conflection. Okay, so this is a show the conflection. Conflection का मतलब हमने आपको पहले बताया मतभेद। So that's our indicate the conflection. This is a conflection, this is a conflection, this is a conflection, but this and this, that's are the packed nature. Okay, so this is called the plus D form and this is called the minus L form. Okay, the second, so this is the 2. The third is mesoform, COH and COH, H and CHOH and COOH. अब यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं यहाँ पर दो एसिमेट्रिक कार्बन है, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है, और ये बहुत ही आसानी से प्लेन ऑफ सिमेट्री को फॉलो करते हैं। ये क्या है आपका? प्लेन ऑफ सिमेट्री को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर इस पूरे ग्रुप को उठा करके ऐसे आप पलट कर दीजिए, मिरर इमेज लगा के ऐसे पलट दीजिए, तो ये आपका मेसोफॉर्म आपका क्या हो जाता है? ये पूरा इसी पर आपका ओवरलैप कर जाएगा। COH से कट जाएगा, C से कट जाएगा, OH कट जाएगा। ठीक है, HS से कट जाएगा। इसका मतलब ये मेसोफॉर्म हो गया। जहां पर इस तरह का कंडीशन होगा उसको हम मेसो कंपाउंड कहेंगे। दिस इज कॉल्ड द मेसो कंपाउंड। ओके, और चौथा जो हमारा आता है, चौथा जो आता है वो इक्वामोलर मिक्सचर ऑफ, दैट इज plus D and minus L form of compound. So this is called the racemization. Okay, so
दीज टू मीसो और आपका रेसिमाइजेशन, ये दोनों आपके क्या होंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे, और ये दोनों आपके क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। तो बस इतना आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टार्टेरिक एसिड में 2 ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, 2 आपके इनएक्टिव होंगे। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस। ओके, थैंक यू।